Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching. Today we are going to solve questions of Achiever sections and previous year questions of chapter number 2 Computation Operations of Class 5 Olympiad. Your first question of Achiever section is question number 46. If a triangle plus a circle is equals to some number and a triangle plus a circle plus circle plus circle is some number and a cylinder plus a triangle plus a circle is equals to 4620, then what is the value of the given figure? कुछ फिगर्स हमें दिए हुए हैं. One by one we will find out the values of the figures and then we will add it. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. Look at the first statement given to you. Triangle plus a circle is some value और नीचे जो दिया हुआ है कि cylinder plus some triangle and circle is some value. तो हमें तो जो वैल्यू हमें मालूम है हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सिलेंडर की वैल्यू हमें निकल जाएगी 910. ओके, अब आप सीधा देखो वहाँ जहाँ हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है ना, ट्राइंगल प्लस 2 सिलेंडर प्लस 1 सर्कल. तो हमें ट्राइंगल और सर्कल का वैल्यू तो ऊपर से ही मिला हुआ है और सिलेंडर का वैल्यू हमें 910 मिल चुके हैं. तो बस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 5530. सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर हमें मिल गया सी. Let us see question number 47. Find the value of P plus R minus S upon Q. डिवीजन है, डिवीजन में कुछ नंबर्स मिसिंग है जिनको P, Q, R, S ऐसे नेम दिया हुआ है and you have to find the value. Look at the first digit P. If you multiply 258 into 3 you get 774. So P का वैल्यू मिल गया हमें 3. Look at Q. Q will be 5. Now let's move to R. If you multiply 258 into 4 you will get as 1032. So R is 4 and S वाला calculation देखो, from here you will get S is equals to 3. Now let's put all the values and get the answer. 3 plus 4 minus 3 upon 5 is equals to 4 by 5. Now select the option. Move to question number 48. Which of the following option is correct? There are two statements P and Q और इन दोनों में से कौन से करेक्ट है? दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही रॉन्ग है. क्या है हमें बताना. P says the HCF of two given number cannot be greater than the LCM of these two numbers. बिल्कुल सही है, HCF greater नहीं हो सकता LCM से. स्टेटमेंट Q है the LCM of two numbers is the least number that divides both the number without leaving any remainder. Yes, this is also correct. तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि both the statements are true. That is, we'll select here option A. Now see question number 49. If a square into a square is equals to 36, a circle divided by a square is equals to 8 and a star plus a circle is equals to 50. Find the value. जो हमने पहला क्वेश्चन किया इसका 46 नंबर, सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है. ऑपरेशंस आर डिफरेंट. ओके, लुक एट स्क्वायर इनटू अ स्क्वायर इक्वल्स टू 36. मतलब एक स्क्वायर का वैल्यू आपको मिलेगा 6 है ना, 6 6 36. नाउ सर्कल डिवाइडेड बाय अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 है, तो सर्कल डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर सर्कल इज इक्वल्स टू 48. नेक्स्ट इज स्टार प्लस अ सर्कल इज 50. तो यहाँ पर हमें स्टार की वैल्यू क्या मिल जाएगी? स्टार की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2. अब जो हमें फिगर दिया हुआ है उस पर हम ऐड करेंगे, है ना, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ऐड करेंगे. 6 प्लस 48 प्लस 2 दैट गिव्स 56. Now which option is correct? Select it. The last question of Achiever section, question number 50. In a town there are two public libraries. The number of books in first library is given and the number of books in second library is this. दो क्वेश्चंस पूछे हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. टोटल यानी P प्लस Q हमें ऐड करना है, फर्स्ट लाइब्रेरी सेकेंड लाइब्रेरी. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मोर बुक्स डज द फर्स्ट लाइब्रेरी हैव देन द सेकेंड लाइब्रेरी, यानी कि हमें डिफरेंस निकालना है. ठीक है, द सम इज 799,370.
और डिफरेंस, चलो डिफरेंस को कैलकुलेट कर लो, सब्ट्रैक्ट करके देखो व्हाट एग्जैक्ट आंसर आर यू गेटिंग। वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में फिर आपको देखना है द आंसर इज 105766। दोनों मिल गए आंसर्स हमें। नाउ विल सर्च इन दी ऑप्शंस। विच ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी। Now let us solve some previous year questions of SOF IMO 2021. Question 1 is, first 3 common multiples of 6, 8 and 12 are. The 3 common multiples, okay. So we'll be writing the multiples of 6, then 8 and then 12, and then we'll find out the common multiples. Let us write the common multiples now. सो क्योंकि हमें 3 नंबर दिए हैं, सो विल गो लिटिल बियॉन्ड देन 60, ओके, फ्यू नंबर्स, और इन केस वी नीड सम मोर तो फिर उसके आगे कुछ और मल्टीपल्स हम आगे और बढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि मल्टीपल्स बोला है तो मल्टीपल्स करके ही हमें इसे फाइंड आउट करना होगा। नाउ लेट अस सर्कल द कॉमन मल्टीपल्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Now question number 2 is, the given figure shows the factorization of a number. What will become, B नहीं आएगा, what will come at the place of question mark. तो 90 को फैक्टराइज किया गया 15 एंड वॉट, 15 एंड वॉट, 15 का टेबल आप रीड आउट करो, 15 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 90, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, 6। Now question number 3 is, find the highest common factor, that is HCF of the given number. The numbers are 48, 120 and 64. तो विल फैक्टराइज, या तो इनके फैक्टर्स लिखो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनके निकालो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज द इजीएस्ट मेथड आई थिंक। तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं एंड सी द फैक्टर्स आर लाइक दिस। प्राइम फैक्टराइज मैंने कर लिया 48 का। नाउ लेट्स प्राइम फैक्टराइज 120। यू हैव टू सॉल्व इट, और थोड़ा फास्ट करने की बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। एंड यू नो दैट इन ओलंपियाड एग्जाम्स द टाइम मैटर्स अ लॉट। तो टाइम को देखते हुए हमें काम करना है, तो हमें स्पीड अपनी अच्छी रखनी है। ओके, फैक्टराइज कर लिया। अब HCF करना है तो कॉमन वाले लिखो, देन 3 नहीं है कॉमन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, दैट इज ऑप्शन सी। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर हमें आंसर मिल गया, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन इजी है। विच सिंगल डिजिट विल रिप्लेस सर्कल इन द गिवन मल्टीप्लीकेशन। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, आप फर्स्ट वंस वाले प्लेस को मल्टीप्लाई करो ना, 4 इंटू 3 इज 12, तो वंस प्लेस में क्या है, 2 है। एवरीवेयर 2 2 2 2, क्योंकि सिंगल डिजिट बोला गया है, तो एवरीवेयर 2 2, दैट इज ऑप्शन थर्ड। मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 3, 4 3 से 12 मिल रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। Hina had pencils given in Roman numbers. Numbers are in Roman. XXX यानी 34, out of which she used 29 pencils. How many pencils are left with her? तो अगर आप रोमन नंबर जानते नहीं हैं तो रोमन नंबर को पहले लिख लो हिंदू अरेबिक नंबर्स में। और ये तो 24 है, 34 में 34 में से 29 यूज्ड हो गए, 5 बचे, 5, दैट इज ऑप्शन सी। उसको हम लिखते हैं वी। रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं, वी लिखते हैं। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 सेज अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 1,64,372 कंप्यूटर्स ड्यूरिंग लास्ट 3 years. If 12,736 कंप्यूटर्स वर फाउंड डिफेक्टेड, अगर उसमें से कुछ डिफेक्ट निकले तो कितने कंप्यूटर्स नॉन डिफेक्टिव है, यानी कि अच्छे हैं, इन गुड पोजीशन। सो व्हाट यू विल डू, लेफ्ट वाला पूछा तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सब्ट्रैक्शन की थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि इससे पहले हमारे 3 वीडियोस हो चुके हैं। कौन कौन से वीडियोस हो चुके हैं, एक तो एक्सप्लेनेशन वाला सेल्फ टेस्ट वाला वीडियो हो गया, देन क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हमने किया, फिर 9 से 10 से 45 तक का एक वीडियो हुआ, और ये हमारा अचीवर सेक्शन वाला वीडियो चल रहा है। यानी कि 3 वीडियो हमारे पहले हो चुके हैं और ये हमारा 4th वीडियो है चैप्टर नंबर 2 का। इन केस यू हैव नॉट सीन द वीडियोज़, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ पर आप लिंक मिलेगा, लिंक में आप जा करके बाकी के देख सकते हो।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स रीड द कॉलम 1 देन वील रीड कॉलम 2। पहले रीड कर लो क्वेश्चन को, ठीक है, रीड कर लेंगे तो सोल्यूशन हमारा फास्ट होगा। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स 56 एंड 64, नंबर्स आर लिटिल बिगर, बड़ा नंबर है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 198 एंड 288, द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7 इज, द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 255 इज। देखो ज़रूरी नहीं है कि हम चारों के चारों सॉल्व करेंगे, हो सकता है पहला ही सॉल्व करने पे हमें आंसर मिल जाए, दूसरा ही सॉल्व करने पे हमें पूरा पेयर मिल जाए, तो पूरे के पूरे क्यों सॉल्व करेंगे। पहले वाला पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट वाला क्या है हमारा। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 56 एंड 64, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। सबसे इजी मेथड क्या है, सबसे इजी मेथड है प्राइम फैक्टराइज करो और दोनों को साथ में प्राइम फैक्टराइज करो। ये तो आपको आता होगा कि साथ में कैसे करते हैं, साथ में दोनों को प्राइम फैक्टराइज करेंगे जो हमें आंसर मिलेगा। तो करके देख लेते हैं 56 और 64 साथ में से हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं एंड मल्टीप्लाई करो जो भी हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर्स मिले हैं, दैट इज़ 448 मिल गया हमें। फर्स्ट का है Q, देन सेकेंड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, 18 मिला, दैट इज़ R। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही मात्र ऐसा ऑप्शन है दैट हैज़ 1 का Q एंड सेकेंड इज़ R, दैट इज़ ऑप्शन D, सो विल सेलेक्ट ऑप्शन D। और फर्दर यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन D हमें यहाँ पर मिल गया है ना, सो विल नॉट मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। What is the sum of all the prime factors of 145? 145 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनका सम, पहले 145 के फैक्टर्स निकालो। लास्ट में 5 है, या तो ये 3 से डिवाइड होना या तो 5 से डिवाइड होना है, तो 3 से ये डिवाइड हो नहीं रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे हम। 29 और 29 प्राइम नंबर्स है, तो 29 1s are 29। अब ये दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं 5 + 29 दैट गिव्स अस 34, सो ऑप्शन C दैट इज 34। क्वेश्चन 9, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ मल्टीपल ऑफ 7, सेवेंथ का चौथा मल्टीपल 28 एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 192। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 144 और 192 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, HCF क्या है। हाँ, सो विल बी कैलकुलेटिंग वन बाय वन। पहला स्टेप क्या है, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 7, तो पहले हम फोर्थ मल्टीपल ऑफ 7 को लिख लें साइड में, उसके बाद हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मैंने बताया इजी मेथड है, सबसे ज़्यादा क्या, आप प्राइम फैक्टराइज करो। व्हेन यू प्राइम फैक्टराइज द नंबर इट टेक लेस टाइम, उतने फैक्टर्स निकालेंगे उससे तो बहुत ही कम टाइम लगता है हमें ये करने में, फटाफट से हो जाता है अगर आपको डिवीजन प्रॉपर आता हो तो, है ना। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब हम देखेंगे कॉमन नंबर्स क्या है और फिर HCF निकालेंगे, दैट इज़ 48। नाउ व्हाट इज टोल्ड, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट बोला है तो 28 और 48 का प्रोडक्ट 1344, ऑप्शन D। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या है, एक ही वैल्यू, एक ही नंबर आएगा एवरीवेयर। तो पहले ही नंबर को आप सॉल्व कीजिए, x - 8 गिव्स 5, तो 8 किस में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करें, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आता है, 13, तो क्या होना चाहिए था वहाँ पर 3, क्या होना चाहिए था 3, सो 3 - 8, तो ये हम बोरो करेंगे 6 से, 6 में से जब बोरो कर लिया तो वो 13 बन गया, सो 13 - 8 गिव्स यू 5। ऑप्शन हमें 3 मिल रहा है, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी करके दिखा दूंगी। बाय द टाइम मैं आपको ये बता दूं कि ओलंपियाड की प्रिपरेशंस एवरीबडी हैज़ स्टार्टेड नाउ। अगर आप ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो SOF का हो, DAV का ओलंपियाड हो, यूनिफाइड काउंसिल का हो या फिर इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, कोई भी किसी भी तरह का ओलंपियाड है, तो प्रिपरेशन आपको अभी स्टार्ट कर लेनी है, समझे। अभी स्टार्ट अगर आप कर लेंगे तो बाय द टाइम योर एग्जाम्स विल रीच यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आफ्टर ऑल एग्जाम में हमें अपनी बेस्ट देनी तो है। ओके, बाय एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।